नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेवी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप गंभीर जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम दोनों कहां पर हैं? नेशन नाउ पर। जी हाँ, और नेशन नाउ हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय सिया राम। प्रदीप जी, अब राम मंदिर की हवा चल रही है। एग्जैक्टली। अब मुझे नहीं लगता कि जहाँ तक इंडिया अलायंस का प्रश्न है, इंडिया अलायंस के पास कोई जवाब है इसका। कुछ भी कर लो नहीं है, क्योंकि देखिए साहब, 143 143 MPs ऑफ द ऑपोजिशन, दैट इज नॉन बीजेपी पार्टीज, वर सस्पेंडेड। निलंबन किया गया 143 विपक्ष के सांसदों का। अगर ये पहले वाली कांग्रेस होती तो अभी तक तो भारत बंद हो जाता। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। और कुछ तो होता। यहाँ पे छोटी मोटी आपने थोड़ी थोड़ी रैली इधर उधर कर दी, विच वर ऑल्सो पैथेटिक बाय द वे, आई सॉ। जहां पर लाखों लोगों की भीड़ आनी चाहिए थी वहां पर कोई भी नहीं आया। हाँ, आप ये बोल रहे हैं कि नागपुर में क्योंकि 28 दिसंबर को कांग्रेस का फाउंडेशन डे, वहां पे यू आर एक्सपेक्टिंग 1 million people, that is 10 lakh people. That's neither here nor there, that's only one occasion. By now you should have had at least 4 to 5 lakh people घेराविंग parliament, or at least registering your presence in Delhi, at least registering your protest if you think that what has been done to you is unjust. लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय नहीं हुआ है तो उसका रिएक्शन सामने है। प्रदीप जी, सड़क से संसद तक, दैट इज द कांग्रेस कैंपेन विद द इंटेंट टू डू, बट एज यू सेड दे हैव टू डू इट फास्ट। दे सेइंग 30 दिसंबर के बाद करेंगे, कभी करेंगे। आई मीन यू कांट हैव इट डिलेड। नाउ यू नीड, इफ देयर इज अ चेंज, you need to feel the change. The people should feel the change. 2013 end, we felt the change. The whole country felt the change. Everybody knew that the new government is coming and Mr. Modi is coming to power. We need, I mean, if the Congress wants to develop, the India Alliance wants to develop something, a feeling, they need to create that feeling across the country that something is, there's a change in the air. Sharad Pawar ji बार बार बोलते हैं there's a change in the air, you can feel the change in the air, but actually nobody is feeling the change in the air. there is no change. There is no change in the air. There is one change. There is one change, and which is we can see how weak the opposition has become. आज की तारीख में even Ajit Dada Pawar is effectively laughing at the Congress. Exactly, sir. जो उन्होंने कहा कि कहाँ खड़गे और कहाँ हम नरेंद्र मोदी, मतलब कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, मतलब यही हुआ ना। मतलब this is, I have never seen the Congress in such a pathetic condition. Very frankly, I thought after the Bharat Jodo Yatra, success of the Bharat Jodo Yatra, I thought the Congress organization had been resurrected, rejuvenated, re-energized. I don't see anything happening. Do you see anything Sir, happening? the only consensus that the India Alliance built is in the name India. Yep. India पे उनके consensus है, बाकी कोई चीज में उनके consensus नहीं है। बस they have come together, they don't have a common minimum program, they don't have a vision, they don't have a convener, they don't have a candidate for the PM. We can excuse the candidate of PM not there, ठीक है, बाद में कर सकते हैं, इतिहास है कि कांग्रेस बाद में भी किया है, but at least you have a convener for your, who's going to charter, coordinate all the programs. सर, कांग्रेस ने बाद में कभी नहीं किया, एक ही बार किया। हाँ, नरसिम्हा राव के बाद किया। Yes, जी। But the point here is, look at the BJP का तैयारी देखो। राम जन्मभूमि का उद्घाटन का तैयारी नरेंद्र मोदी जी दिसंबर से शुरू कर रहे हैं, सब जगह विजिट, अयोध्या ठीक है कि नहीं? The entire airport in Ayodhya is going to be ready. 100 aircrafts are going to be there on 22 जनवरी, जो हम लोग बार बार कह रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठान जब होगा, 100 aircrafts carrying people are going to be in Ayodhya. Everything has been planned. Everything is planned to a T. I mean everything, hour by hour, second by second. As Vishwa Hindu Parishad said, this is a celestial event. एक celestial event है जहाँ पूरे the whole universe is waiting to be a witness to this episode, which is going to be a event of the entire universe. अखंड ब्रह्मांड जो बोल रहे हैं, अखंड ब्रह्मांड, पृथ्वी और स्वर्ग इसका साक्षी रहने वाला इतना बड़ा एक इवेंट हो रहा है। रामलला, रामराज, भगवान राम अपने लोगों से मिलने के लिए आ रहा है। एवरीथिंग इज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एवरीथिंग इज प्लान्ड। ऑफिशियली अगर देखा जाए, आधिकारिक तौर पे अगर देखा जाए ऑफिशियली, तो 496 साल के बाद रामलला अपने घर लौटेंगे। एग्जैक्टली। असल में 550 साल के बाद। अमित शाह कह 550 साल, वो गलत नहीं बोल रहे, नहीं ऑफिशियल, वो ऐसा है, वो गलत नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उसके 50 साल पहले ही मुगलिया शासन शुरू हो गया था। मुगलिया नहीं,
मुगलिया शासन चलिए आप फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद ले लें, लेकिन उसके पहले भी यहाँ पर इब्राहिम लोदी का राज था, सिकंदर लोदी का राज था, और उसके पहले द होल स्लेव डायनेस्टी वाज देयर, सुल्तान्स, टर्क्स एंड एवरीबॉडी फ्रॉम अफगान से लेके द सेल्जुक टर्क्स वर देयर, उसके बाद द खिलजी डायनेस्टी वाज देयर। तो मेरा ये कहना है कि 550 बरस का जो आंकड़ा अमित शाह जी ने दिया है वो गलत नहीं है, और आज की तारीख में इंडिया अलायंस के पास मतलब कोई जवाब नहीं है, मेरा ये कहना है। विच इज वाई मिस्टर अजीत दादा पवार वॉज एबल टू स्पीक विद सच कॉन्फिडेंस, वेयर ही सेड एक तरफ मतलब नरेंद्र मोदी है और उनके सामने आप मल्लिकार्जुन खड़गे खड़ा कर रहे हैं, क्या मतलब। और खड़गे साहब भी मना कर दिया, बोला कि मैं इसके लिए सहमति नहीं दे रहा हूं अपना, आई एम नॉट एग्रीइंग टू दिस। आपने प्रपोज किया बट आई डोंट, बिकॉज देयर ओन पार्टी द कांग्रेस हैज नॉट put up must tick on that. The Congress not approved it. The Congress was spent, stumped by this particular offer by Trinamool Congress, Mamata Banerjee and Kejriwal. They in fact stumped, and Kejriwal, I think Mallikarjun Kharge was probably embarrassed. बोले ये तो एजेंडा में नहीं है, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाने का, आपने एजेंडा ठोक दिया कि हम मतलब मुझे सूली पे क्यों चढ़ा रहे हो? yes, yes. मेरे सामने मेरे लीडर बैठे हैं भाई, सोनिया जी बैठी हैं सामने, राहुल गांधी बैठे हैं, माफ नहीं करेंगे। खैर एनीवे, वी हैव मिस्टर मुकेश गांधी of the NCP at the moment with us, Ajit Dada Pawar group. Mukesh Gandhi साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। How are you sir? How are you? बस हैप्पी नमस्कार सर। By the way, today is Pradeep ji's birthday. You can wish him a happy birthday. अरे विश यू हैप्पी बर्थडे। देखिए आप कितने नसीबदार है प्रदीप जी कि मुझे आपके नाम के साथ कवि प्रदीप जी भी याद आ गए हैं। क्या बात है। और आज देखो कितना अवसर है कि आज भगवद गीता जयंती है जी, और प्रदीप जी का जन्मदिन है। और भगवद गीता ने एक ही बात कही है कि स्वधर्म अपि चावेक्षण विकम्पितु महर्षि, हमें धर्म को झगड़ा नहीं करना है जी, पर हमारे स्वधर्म को जानना है, और फिर बाद में तस्मात युद्धाय कृत निश्चय। अभी सारे हिंदुस्तान के लोगों को अमित शाह जी और मोदी जी ने जो बनाए हुए नए कानून जो है उनके साथ में जुड़ करके युद्धाय कृत निश्चय और फिर बाद में यशो लभस्व, ये गीता के मंत्र हमको मिलेंगे। क्या बात है सर, जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू। लेकिन जिस प्रकार अजीत दादा पवार ने आज कहा कि भाई हाँ जी, कहाँ मोदी जी और आप उनके सामने मल्लिकार्जुन खड़गे को खड़ा कर रहे हैं, मतलब कोई कुछ मेल बनता नहीं है ना सर। मतलब अजीबोगरीब मसला है। व्हाट इज दिस अ कॉमेडी? दिस इज नॉट द कांग्रेस आई रिमेंबर। मतलब आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, गैर संवैधानिक तरीके से, गैर संसदीय तरीके से हमारे 143 लोगों को आपने निलंबित कर दिया। तो मेरा ये कहना है आज की तारीख में तो हर शहर में 2-2 लाख 3-3 लाख लोगों की भीड़ होनी चाहिए थी, प्रोटेस्ट रैलीज होनी चाहिए थी पूरे के पूरे हिंदुस्तान में। हमें तो कुछ दिखा नहीं, आपको दिखा कुछ मुकेश गांधी साहब? देखिए क्या है कि शेर के सामने तो बकरी तो कुछ काम नहीं कर सकती है, इसलिए वो मच्छर को आगे करती है कि जाके उसके कान में गुड़ 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 करो। बस इसके लिए खड़गे हमारे मच्छर बन के आ गए हैं जो सिर्फ खाली आवाज करेंगे, काम नहीं करेंगे। और यही बताते हैं कि इंडी का जो ग्रुप है वो पूरा हार गया है, हतप्रभ हो गया है और वो कुछ नहीं करता। क्योंकि मेरे हिसाब से तो अभी ये जो नए रेजोल्यूशन जो है दिल्ली में राज्यसभा में पास हो गए इनको निलंबित करने के बाद में, उसमें मुझे लगता है कि अमित शाह जी ने और मोदी जी ने कई सालों के बाद मैकॉले की जो लाई हुई जो परंपरा थी उसके सामने हमारे देश को स्वदेशी चश्मा पहनाया है, स्वदेशी चश्मा पहनाया। और दूसरी बात, मोदी ने 19 की लड़ाई जो है ना वो उसने 190 साल की लंबी छलांग लगाई है। 190 साल से जो कानून चल रहे थे उनको इन्होंने मिटा करके हमारे देश को एक नई दिशा दिखाई है। ये सचमुच बहुत बड़ी बात है, दुरुस्त बात। लेकिन चलिए उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जो आज अजीत दादा पवार की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उनमें अजीत दादा पवार ने साफ तौर पर कहा है कि यही गुट मेरे साथ रहेगा, इसमें कोई स्प्लिट होने का सवाल ही नहीं है, जहां भी हम जाएंगे साथ में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है, ऐसा उन्होंने कहा है। और साथ में ये भी कहा है कि आचार संहिता जो है वो मार्च से लग जाएगी। तो अभी हमको बिल्कुल कुछ और बिना देखे फोकस करके अपना ध्यान सिर्फ विकास पर केंद्रित करके पूरे महाराष्ट्र का विकास करना पड़ेगा। मुकेश गांधी साहब, एकदम सही बात था। मैं वहां
हाजिर था और उन्होंने स्पष्ट उसके पहले की भी हमारी क्लोज डोर मीटिंग में भी यही बात कार्यकर्ताओं के साथ में दोहराई थी कि हमको बीजेपी के साथ रहना है और मोदी जी के दिए हुए कार्यक्रमों को हमें आगे बढ़ाना है और जन तक, पूरे कॉमन मैन तक वो प्रोग्राम, सब योजनाएं सब लेके जाना है और उनके हित में काम करना है और लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा सीट एनसीपी के कोटे में जो आएगी उसको जीत के हमको लाना है जी। माने अजीत दादा ग्रुप इज टोटली कमिटेड विथ बीजेपी, Yes. नरेंद्र मोदी जी। Absolutely. And Yes. on the other side, we don't seem to have an opposition. मतलब opposition को मुझे लग रहा है, इनको ऐसा लगता है कि आपने अगर अलायंस बना ली तो जो एक होता है ना, जो बेसिक अरिथमेटिक होता है, 1+1 = 2 हो जाएगा, 2+2 = 22 हो जाएगा, सारे वोट इस तरफ आ जाएंगे। अरे कितनी बार कोशिश कर चुके हो, ऐसी अलायंस तो पहले भी बन चुकी हैं। आफ्टर ऑल प्लीज रिमेंबर, उत्तर प्रदेश में मायावती, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की अलायंस थी, क्या हुआ? आपने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटें जीत करके लाई। मुकेश गांधी साहब, हाँ, He's got a phone call. Mr. Mukesh Gandhi, I think, has got a phone call. He is got disconnected. He'll join again. Yes, sir. Yes, sir. But this is, as we say, 190 years in Indian Penal Code, CRPC, जो change करना है, enforcing a new change. We were still following the British laws. जो ब्रिटिश ने कानून यहाँ पर छोड़ के गए थे, उसी को फॉलो कर रहे थे। I want to see. Have you read it? I want to see what is the पंचनामा कानून। वो पंचनामा का जो रूल है वो हटाया कि नहीं हटाया, कि अभी तक वही है? The most important thing सर, सेडिशन हटा दिया। जी। सेडिशन, But लोग से बोल रहे थे कि ये कानून इज आउटडेटेड, ये चेंज होना चाहिए। 124A। Yes, 124A is not as per कभी ब्रिटिश जमाने में ये वैलिड था, आज के जमाने ये वैलिड नहीं है। अभी हनुमान चालीसा पढ़ने पे लिए आप 124A लगाइए, सेडिशन के कानून लगा देंगे। किसी के बाहर, घर के बाहर मोर्चा करेंगे तो आप सेडिशन के चार्जेस लगा देंगे। तो बोथ द पार्टीज, द कांग्रेस एंड द बीजेपी, वो कंटिन्यूअसली accusing each other of misusing this particular law. And nobody was trying to say that this law has to be changed. तो उसकी जगह में UAP लगाएंगे। Yes, they brought new laws जो एक तो UAP है, but at least this government had the guts to change the laws. जब बोले कि हम लोग चेंज करेंगे, पुराने कानून को चेंज करेंगे, वो चेंज कर रहे हैं। This is 190 years of that. Right, I think Mr. Mukesh Gandhi is back. Yes. मुकेश गांधी साहब, हाँ जी, ये ऐसा नहीं है कि पहले अलायंस नहीं हुई, अलायंस तो पहले भी हुई है। हाँ जी। इंदिरा जी जब प्राइम मिनिस्टर थी तब भी अलायंस होती थी और कुछ नहीं होता था उनका। आज भी अलायंस है, सिर्फ एक अलायंस काम करी है, वो जनता पार्टी की अलायंस काम करी है 1977 में। उसके अलावा किस अलायंस ने काम किया? मतलब अलायंस का मतलब ये नहीं कि 1+1 = 11 और 2+2 = 22। आफ्टर ऑल, एज आई वाज सेइंग, अखिलेश यादव, मायावती, बहन मायावती जी and Rahul Gandhi were in an alliance together in UP, and what happened in Uttar Pradesh? जी मुकेश गांधी साहब। हाँ जी, ये अलायंस है ही नहीं है, ये कमजोर लकड़ियों का एक इकट्ठा गट्ठा है जी। वो हर लकड़ी अगर अलग रहेगी तो टूट जाएगी, इसलिए लकड़ियों को गट्ठा बना दिया इन्होंने जी। और उसके ऊपर इंडिया नाम का एक लेबल बना के उसको बांध के रखा है। पर आपको मैं बता दूं कि धीरे धीरे एक एक लकड़ी निकल जाएगी और पूरा गट्ठा छूट जाने वाला है। सिर्फ खाली मोदी जी का, बीजेपी का झंडा ऊपर हिंदुस्तान में लहराने वाला है। जी, दुरुस्त बात है। मुकेश गांधी साहब, नाउ अजित पवार जी टॉक्स अबाउट कंस्ट्रक्टिव लीडरशिप, एकदम स्पेसिफिक लीडरशिप, एक लीडरशिप जो विजनरी है। आपने वही बात किया कि यू गॉट अ विजनरी लीडरशिप। आपने 190 इयर्स कानून का बदलाव, जो ब्रिटिश के जमाने के कानून अब तक चल रहे हैं, इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी, आपने बोला दे हैव चेंज, सेडिशन लॉ को चेंज कर दिया। ये लॉ कानून की बात हो गई। 550 साल से जो मंदिर टूटा हुआ था, आज 550 साल के बाद राम जन्मभूमि, राम मंदिर को पुनर्निर्माण हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठान 22 जनवरी 12:22 और पूरे प्लानिंग तैयार है अयोध्या में। और पूरे जितने संगठन है, वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद कह रहा है कि अखंड ब्रह्मांड, पृथ्वी और पूरे अपने स्वर्ग इस राह को देख रहा है कि कभी भगवान राम वहां प्राण प्रतिष्ठान होगा और लोगों के बीच में आए। नाउ दिस इज व्हाट यू कॉल डिसाइसिव लीडरशिप, व्हिच अ लीडर हैज टू हैव a guts to take certain decisions, and you say Ajit Pawar ji, and you found this leadership qualities in Narendra Modi and Amit Shah. Gandhi साहब, नहीं, हेलो, हाँ बोलिए सर।
हाँ, देखिए ये जो राम मंदिर का भव्य निर्माण का कार्य और जो समारोह होने वाला है, इससे प्रकाश की ज्योति से जो नया एक सवेरा खड़ा होगा हिंदुस्तान में, वो हिंदुस्तान के इतिहास को करवट देगा। एक नए पन्नों का आलेख शुरू हो जाएगा। और मुझे लगता है कि ये जिस तरह से आयोजन किया गया है उसमें अजीत पवार ग्रुप का तो पूर्ण समर्थन है ही, क्योंकि राम मंदिर होना चाहिए। इसके लिए कभी भी किसी के दिल में या मन में कोई दो राह नहीं है कि भाई ये होगा कि नहीं होना, होना है और अभी हो रहा है। तो ये तो बहुत बड़ा प्रसंग होने वाला है। इससे मैंने पहले कहा, वैसे इतिहास का पन्ना अभी करवट ले रहा है, पन्ना बदल रहा है, और जो नए पन्ने पे आलेख होंगे उसमें मोदी राम मंदिर के द्वारा एक स्वर्णिम अक्षरों से ये सारी बातें लिखी जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। गांधी साहब, जिस प्रकार से 143 या 145 एमपीज को सस्पेंड किया, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का कहना है कि एमपी सस्पेंड नहीं हो गया, लोकतंत्र सस्पेंड हो गया, डेमोक्रेसी हैज बीन किल्ड। और राहुल गांधी जी बार बार, आज से नहीं 2 साल से चिल्ला रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। opposition leaders are being targeted, judiciary is being intimidated, and right wing activism जिस प्रकार से हावी हो गया, तो ये धीरे धीरे ये चार्जेस एनफोर्स कर रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है ये लोकतंत्र सचमुच खतरे में था जब पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच हो गया? उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जी और इंडिया अलायंस का लगातार सब जगह मीटिंग हो रहा है। हाउ डू यू सी दैट सर, गांधी साहब? देखिए, ऐसा है, लोकतंत्र खतरे में नहीं है, कांग्रेस और सारे ऑपोजिशन वाले खतरे में हैं। और मोदी जी के सामने विरोध करने के लिए खड़गे जी ने भी अभी नई स्पेशल टोपी बना करके चढ़ा दी है अपने सर के ऊपर। आप देख रहे हैं टीवी पे जी। तो ये टोपी नहीं चलने वाली है, टोपी निकल जाएगी और खड़गे जी वापस अपने पिक्चर में आ जाएंगे जी। तो ये चलने वाली ये नहीं है, और इसमें लोकशाही को कोई धोखा नहीं है। और जितना भी कार्य हो रहा है हमारे पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा में, वो बहुत ही कानूनन हो रहा है। कहीं भी आप देखो, कोई भी एक्सपर्ट लॉयर को आप पूछो, जो कॉन्स्टिट्यूशनल के जो राइटर है, जो लॉयर्स हैं, उनको पूछिए कि आज तक बीजेपी ने इतनी दक्षता रखी है, मोदी जी और अमित शाह जी ने, कि उनके पार्लियामेंट अफेयर्स के जो मिनिस्टर्स हैं उससे लेके सारे मिनिस्टर्स हर बात को टोटली लॉफुल जा रहे हैं। उनके सामने आज या भविष्य में भी कोई उंगली उठा नहीं सकता। अभी जो रेजोल्यूशन पास हो गए ना, वो रेजोल्यूशन भी पूरे लॉफुल है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। तो मुझे लगता है कि लोकशाही खतरे में नहीं है, कांग्रेस और खड़गे की टोपी खतरे में है। यानी जो टोपी है वो तो मुझे याद दिला रही है विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की जो कारकुल कैप थी, मुझे लग रहा है वही पहन रखी है उन्होंने, शायद वहीं से लेके आए होंगे, मुझे मालूम नहीं है। नहीं, ये तो माइनॉरिटी का तुष्टीकरण के लिए पहनी हुई टोपी है। नहीं शाबाश, नहीं शाबाश। लेकिन आई डोंट थिंक दीज विल वर्क, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज एज आई हैव बीन सेइंग ऑल अलोंग, you need a proper organization, you need to reach out to all the people। सिर्फ ये अलायंस बनाने में और एक लीडर को अनाउंस करने में कुछ होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोग्राम है, भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है और भारतीय जनता पार्टी का जो मॉडल है डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के लिए, वो सबके सामने। इंडिया अलायंस का डेवलपमेंट मॉडल क्या है वो अभी तक किसी को मालूम नहीं है सर। आपको मालूम है क्या कि उनका क्या विकल्प क्या है, क्या विकल्प वो दे रहे हैं भारत की जनता के सामने? अरे भारत की जनता के सामने उन्होंने विकल्प तो दे दिया कि हम अंग्रेजों के चमचे हैं, हम पाकिस्तान के समर्थक हैं, हम हिंदुस्तान के अगेंस्ट जाने वाले लोग हैं, आप हमारे साथ प्यार करो, हम नया पाकिस्तान बना के देंगे, नया बांग्लादेश बना के देंगे। ये तो इनका एजेंडा है। तो अपना एजेंडा तो इन्होंने एक्सपोज कर दिया है। सर, एक डीएमके के सांसद, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, हाँ जी, वो ही इज ऑल्सो डिप्टी स्पीकर, हाँ जी, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है लोकसभा में कि मान लीजिए हम लोग अगर जीत जाते हैं, सो वी विल ट्राई टू रीइंपोज आर्टिकल 370, हम तो 370 को वापस लाने वाले हैं, ऐसा बोला। देखिए वो तो एक जमाने में सिब्बल ने भी यही कहा था कि जिस दिन राम मंदिर बनेगा उस दिन मैं राम मंदिर के पास जाकर के मैं अपना सेल्फ सुसाइड करूंगा जी, मैं आत्महत्या करूंगा अगर राम मंदिर हिंदुस्तान में बना तो अभी कपिल सिब्बल को बोल दो कि डेट आ गई है, कब आप सेल्फ सुसाइड कर रहे हैं? 22 जनवरी को।
22 जनवरी को। जी। तो कपिल सिब्बल को पूछिए, उन्होंने ट्वीट किया हुआ है, मेरे पास उसका ट्वीट का कॉपी भी है। जी है। तो उन्होंने किया है क्या? वो नहीं करेंगे। ये सिर्फ बहकावे वाले करने वाले लोग हैं, सिर्फ लोगों को बहकाना चाहते हैं और बेचारे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को और देशवासियों को फोगट में शहादत दे देते हैं और वो अपने जाकर लंदन और पेरिस में जाके मजे करते हैं। लेकिन ऐसे मुकेश ये गांधी साहब, देशद्रोही लोग हैं। ये आपकी बात बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है। जो आपने बात कही ना लंदन और पेरिस की जो बात कही, हाँ जी, एब्सोल्युटली करेक्ट। कि इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ श्रीनगर से और हाँ जी। आसपास के इलाकों से, तो उस वक्त के जो मुख्यमंत्री थे आदरणीय सम्मानीय हमारे बड़े अच्छे मित्र डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, हाँ जी, वो अपने लंदन वाले घर में थे। हाँ जी, सही वो बात लंदन है। के घर में थे वो, और आदरणीय हाँ। जगमोहन साहब ने वो सारी बसेस वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करी थी कश्मीरी पंडितों को वहां से निकलने के लिए। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आर्टिकल हाँ जी। 370 गया, ये पूरे भारत का सपना था। ये सिर्फ आरएसएस का श्यामा प्रसाद मुखर्जी का या भारतीय जनसंघ का सपना नहीं था। हम सब लोग आहत थे इससे, आपको याद होगा। आई एम श्योर यू मस्ट सही बात है। 25 साल पहले 30 साल पहले जब हम लोग श्रीनगर में जाया करते थे तो दे यूज्ड टू से यू हैव कम फ्रॉम इंडिया, इंडिया से आए हैं आप क्या, ऐसा बोला करते थे। और आज अगर ये लोग बात कर रहे हैं कि वो आर्टिकल 370 को वापस लाएंगे, तो मुकेश गांधी साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं 138 साल हो जाएंगे कांग्रेस को दिसंबर 28 को, तो 138 सालों में इन्होंने कुछ नहीं सीखा क्या कि भारत क्या है मुकेश गांधी साहब? क्योंकि वो सीख ही नहीं सकते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, एक पर ग्रंथ लिखा, एक पुस्तक लिखी, पर डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बाद में नेहरू जी ने कभी भी भारत के आत्मा को, भारत की संस्कृति को, परंपरा को सीख करके लोगों के पास ले जाने का काम युवा पीढ़ी को दिया नहीं। और सेक्युलरिज्म का लेबल डाल के हमारे हिंदू धर्म और संस्कृति को दबाने का काम अगर किसने किया है तो नेहरू और नेहरू के परिवार ने किया है। जो आज उसका फल, जो पाप कर्म उनसे हुए हैं ना, वो अभी कांग्रेस भुगत रही है। इसलिए कांग्रेस अभी दिन बे दिन कमजोर होती जा रही है और कल कट ऑफ भी हो जाएगी, वो भी आप लिख के रखना। पर ये जो अब्दुल्ला ने कहा कि 370 की कलम, ये वो सब बातें करते हैं, वो कहते हैं कि ये कलम दूर हो जानी चाहिए, वापिस आनी चाहिए, और कहते हैं कि अभी यहाँ तो टूरिज्म भी नहीं है और सबसे ज्यादा टूरिज्म है, सबसे ज्यादा। नहीं, अभी मेरे हिसाब से अगर फिगर में आपको गिना हो तो आज व्हाट इज टूरिज्म इन कश्मीर, मोहब्बत करना सीखो, ऐसा ये आज अब्दुल्ला सिखा रहे हैं। और उसके सामने अगर आप देखेंगे तो आज अमित शाह जी ने अभी जो कहा कि पीओके वो भारत का अभिन्न अंग है, एक बात। 6 अगस्त 370 कलम को खत्म कर दिया गया, 2 झंडे चले गए, 2 संविधान चले गए, अमित शाह जी ने बताया। वो बहुत प्रॉपर है उनकी बात। और अभी ना हुर्रियत रही, ना जमीयत रही, ना पाकिस्तान की अभी चर्चा कर सकते हैं आप। सारी बातें अमित शाह जी ने उड़ा दी हैं। और आज देखेंगे तो 2022 में 1,80,00,000 मेरे हिसाब से टूरिस्ट कश्मीर गए हैं जी। 35 साल के बाद में थिएटर और नाइट शो चालू हुए हैं भैया जी। और तीसरी बात है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट लोगों को दिया जा रहा है आज, वो तीसरी बात है। और महबूबा मुफ्ती, अब्दुल्ला, कांग्रेस और कश्मीर, ये सब अभी पुराने ढंजे बजाने वाले कश्मीर के ऊपर अभी मौन व्रत धारण कर ले तो उनके लिए अच्छा है, नहीं तो जनता का आंदोलन हो जाएगा तो इनकी हालत खराब हो जाएगी। पत्थर मार के आज तक हमारे पंडितों को मारा, हमारे हिंदुस्तान के लोगों को मारा, कल ऐसा ना हो यही पत्थर रिवर्स उनके ऊपर जाना शुरू हो जाए, होगा, ये भी उनको देखना चाहिए जी। दुरुस्त बात। और दूसरी बात कि मोहर्रम, मुस्लिम धर्म की बात करते हैं तो मेरे मुस्लिम भाइयों को मैं कहना चाहता हूं कि आज तक मोहर्रम का सेलिब्रेशन नहीं होता था, अब मोहर्रम भी चालू हो गई वहां जी, हो गया। तो ये कितनी बड़ी बात है। तीसरी बात है, पंचायत से लेकर महिला आयोग, चिल्ड्रन का आयोग, ये सारे आयोगों का वापिस पुनर्गठन हुआ और लोगों को उनका हक मिल रहा है। और 30,000 लोगों को तो अब तक नौकरी मिल गई कश्मीर के लोगों को। अभी ये सारे स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने हैं और फिर भी ये लोग कहते हैं कि अमित शाह ने, बीजेपी ने, आपके फिगर जरा गलत है।
हाँ बोलिए बोलिए। आपके Please rectify। जम्मू एंड कश्मीर के फिगर आपके गलत है, माफ हाँ जी कीजिए। हाँ बोलिए। हाँ आपने जी कहा आप बताइए। 1.8 करोड़, 1 करोड़ 80 लाख। नहीं नहीं सर नो, 1 करोड़। 1 करोड़ 80 लाख बोला आपने। हाँ जी हाँ जी। सर आज का फिगर मैं आपको बता रहा हूं, टुडे 22 दिसंबर, हाँ हाँ 2 करोड़ क्रॉस हो गया है। अरे वाह वाह बहुत 2 करोड़ लोग, 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट कश्मीर गए हैं। ये रिकॉर्ड है 1947 के बाद। इतने सही ज्यादा बात। पर्यटक आज तक कभी जम्मू एंड कश्मीर में नहीं गए, और अभी तक साल खत्म नहीं हुआ है, 9 दिन और पड़े हैं साल को। नंबर 1। हाँ नंबर 2, जो फॉरेन टूरिस्ट हैं, जो कश्मीर आए हैं, फॉरेन टूरिस्ट, हाँ जी। विदेशी, उनकी संख्या में 350% का इजाफा हुआ है, 350% मोर। वेरी गुड। एंड दिस इज आफ्टर रिपील ऑफ आर्टिकल 370 सर, आर्टिकल 370 के बाद। और जैसा जी दुरुस्त बात है प्रदीप जी, जो बता रहे हैं, जैसा अमित शाह जी ने बताया लोकसभा में, अरे 30 साल के बाद पहली बार मल्टीप्लेक्स खुले, वहां पे सिनेमा देखने को मिल रहा है रात के। सर नाइट शो चालू हो गए। अरे मुकेश गांधी साहब, रात के 1:30 बजे अगर आप लाल चौक के इलाके में जाएंगे श्रीनगर पे, तो आपको लगेगा आप जू में फिर रहे हैं, इतनी भीड़ होती है वहां पे आज की तारीख सही में। बात है। और काशी को भी ऐसे ही डेवलप किया अमित शाह जी ने, कल जो बात की है, बोले जी पिछले 2 साल में 13 करोड़ विजिटर्स हैड विजिट काशी, और 41% इंक्रीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर, 25,000 करोड़ का बिजनेस 2 साल में। अमित शाह के फिगर्स है गांधी साहब। So they सही बात है। are developing Ayodhya, Kashi. What do you think? I mean, just every spiritual center is being developed. अभी क्या है, पहले एक जमाने में खाली हिंदुस्तान में ताजमहल और कुतुब मीनार ही दिखाया जाता था। अब काशी का विश्वनाथ मंदिर भी दिखाएंगे, अभी महाकाल शंकर जी का मंदिर भी दिखाएंगे, सोमनाथ भी दिखाएंगे, और हमारी भारत की जो परंपरा है। और आज देखिए ना, आज कुरुक्षेत्र में हरियाणा में इतनी बड़े बड़े लेवल से आज गीता जयंती का सेलिब्रेशन हो रहा है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। और ये देखने के लिए भी आज वहां कम से कम मेरे हिसाब से 20 या 22 हजार फॉरेन के लोग आए हुए हैं देखने के लिए कुरुक्षेत्र में। तो ये कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है। इसमें देखिए, मेरे मुस्लिम भाइयों को मैं बताना चाहता हूं कि हम हिंदू लोग कभी भी आपका द्वेष नहीं करते हैं, हम सबको साथ में लेकर चलने वाले लोग हैं। पर आप भी अभी मुस्लिम भाइयों को भी अभी द्वेष करना छोड़ देना चाहिए, और हिंदुस्तान की कल्चर की मेन स्ट्रीम में आ जाना चाहिए। और पाकिस्तान आपका मिट गया है, बांग्लादेश चला गया है, और आपको रहना है ये जमीन के ऊपर, तो ये जमीन से प्यार करो, मोहब्बत करो और ईमानदार रहो, बस। लेकिन तो आपने जो कहा अभी आपने जो कहा अभी हाँ। पहली बार ऐसा हुआ है सर, पहली बार 1973 के बाद, 72 या 73 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि मुहर्रम का जो जुलूस था, बिना किसी इंसिडेंट के, बिना किसी वायलेंस के, शांतिपूर्वक निकला श्रीनगर में। वही बात, नहीं तो कहीं नहीं, मतलब लेकिन मेरा सवाल कुछ और है। मैं इन प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा हूं कि कांग्रेस के लोगों को, and I'm only talking about the Congress because the only opposition to the BJP today is the Congress. There is nobody else. Let's be very clear. That is the only pan-India party. So can't they see what is going on? They, in fact, they should participate. Like Atal ji used to, Atal Bihari Vajpayee was the first person to praise Mrs. Gandhi after the victory in the 1971 war. 1971 के युद्ध के बाद अटल जी ने खुद एक जबरदस्त स्पीच दी प्रशंसा करते हुए इंदिरा जी की 1971 वॉर की के विजय के लिए। तो व्हाई कांट द कांग्रेस डू द सेम एंड लर्न समथिंग ऑन हाउ एन ऑपोजिशन शुड बिहेव? दे शुड पार्टिसिपेट इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। मुकेश गांधी साहब, देखिए ऐसा है, कांग्रेस, जवाहर नेहरू की परंपरा इनके ब्लड में है। देखिए जवाहरलाल नेहरू ने भी कभी भी सरदार पटेल के सारे अच्छे मंतव्यों की कभी प्रशंसा नहीं की, राजगोपालाचारी का के कार्य की राजा जी की प्रशंसा नहीं की, कन्हैयालाल मुंशी की प्रशंसा नहीं की, किसी भी उस वक्त के राष्ट्रीय नेता थे उनकी प्रशंसा नहीं की, और वीर सावरकर के चरित्र का हनन करने का काम भी इन्होंने किया, और अंबेडकर की जी को भी जिन्होंने मान्य नहीं किया उनको भी हराया। तो ये नेहरू परंपरा वाला जो ब्लड है ना, वो कभी भी मोदी जी के अच्छे कार्य की सराहना नहीं कर सकता। और मुझे तो डाउट है राजीव जी
कि मुझे नहीं लगता है कि इनको इनविटेशन राम मंदिर का दिया गया है सोनिया जी को, राहुल जी को, तो वो राम मंदिर के प्रसंग पे जाके उपस्थित होंगे या नहीं, ये मुझे डाउट है। सर इनविटेशन ना भी दिया, अपने आप जा सकते हैं। दे तो दिया मल्लिकार्जुन खड़गे जी को और सोनिया गांधी जी को। जी दिया है दिया है। सोनिया जी को इनवाइट किया गया। हाँ जी, सोनिया जी को इनवाइट किया गया पर शायद पर वो नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएंगे। आप जा रहे हैं कि नहीं वो जा रहे? जाएंगे। सर आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे 22 जनवरी को? अरे रोम रोम में रमा हुआ है सबके अंदर राम, तो राम तो यहाँ भी है वहां भी है। सर, हम लोग रहेंगे। साथ में मिलके बम्बई, हम यहाँ, हाँ आप रहेंगे, हम सेलिब्रेट करेंगे यहाँ। We'll be there, but we'll be among the Yeah. pilgrims. We will not be among the VVIPs. We'll be among the pilgrims right there and shooting the entire scene. 3 करोड़ से ज्यादा लोग Yeah. आने वाले हैं सर। 3 करोड़ से हाँ जी। ज्यादा लोग आने 100 वाले हैं। एयरक्राफ्ट, वो जहाज अपने अयोध्या एयरपोर्ट में 100 जहाज रहेंगे उसी वक्त पर, एट वन टाइम। इट्स गोइंग टू बी हरकुलियन टास्क फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन को कंट्रोल करना। मुकेश गांधी जी, आई जस्ट कम बैक टू पार्लियामेंट्री ब्रीच नाउ। जैसे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उनका कहना है कि हमने सिर्फ मोदी साहब को 4 प्रश्न पूछे थे। एक, मोदी साहब आप पार्लियामेंट में सिक्योरिटी ब्रीच के बारे में जवाब दीजिए। अमित शाह का इनिशियली रिजिग्नेशन मांगा था, बट वो लेकिन लास्ट में अमित शाह आप रिप्लाई कीजिए, और नेशनल सिक्योरिटी और पार्लियामेंट सिक्योरिटी पे डिबेट हो पार्लियामेंट के अंदर। और चौथा, जो बीजेपी एमपी था उसका इस्तीफा, सस्पेंड करो उसको, बिकॉज उसके पास के माध्यम से ये 4, 5, 6 लोग अंदर आए थे। तो हाउ डू यू सी गांधी साहब एज एन इंडिविजुअल एंड डेमोक्रेसी में जो बिलीव करें, कुड मोदी साहब एंड अमित शाह कुड हैव एक्सेप्टेड दैट एंड हैड अ डिस्कशन इन द पार्लियामेंट? हो सकता था गांधी साहब? हाँ जी, देखिए, हाँ आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। देखिए ऐसा है कि ये जो पार्लियामेंट में ये जो घटना बन गई, ये घटना के पीछे कौन किसकी साजिश है और क्या है, वो समय आने पर अमित शाह जी एक्सपोज करेंगे। पर एक बात है कि इसकी ये घटना के बाद में अमित शाह जी ने पूरा कंप्लीटली इनके ऊपर एक्शन लेना जब शुरू कर दिया है, और पार्लियामेंट में डिस्कशन करने के लिए भी उन्होंने ना नहीं कहा है, पर एक छोटी सी बात को लेकर के, प्ले कार्ड लेकर के आप अंदर चले जाते हैं, पूरा कैओस कर रहे हैं। और नए जो बिल्स आने वाले हैं, वो बिल्स का ऑपोजिशन वो नहीं कर पाएंगे। इनके एडवांस में इन्होंने ये नीति ली है, कांग्रेस और ऑपोजिशन ने। आप एक मार्क करना, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि उनको निलंबित होना था और उन्होंने वो निलंबन करवाया है। इसमें बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आने वाले जो बिल इश्यू हुए और जो बिल पास हो गए पार्लियामेंट में, वो उनकी प्रेजेंस में उनको नहीं रहना था, उनको दिखाने का था कि हमको इतिहास के साथ, हिंदुस्तान के इतिहास के साथ कुछ लेना देना नहीं है। और जो नए कानून जो अलग अलग आए, कितना जबरदस्त कानून पास हो गए हैं, आप देखिए। एक के बाद एक कानून, एक के बाद एक जो कानून पास हुए हैं। पहला तो जो 3 बिल आया, वो मैकोले ने जो 1834 में जो बनाई हुई जो घटना थी, जो 1862 से कानून हमारे सामने लगाए गए, और 7.5 करोड़ मुकदमा, 9 करोड़ परिवार, आप गिनो तो 45 करोड़ लोग हिंदुस्तान के इससे अफेक्टेड थे जी। उसके सामने जो नया बिल आया है कि 3 साल में कोर्ट में फैसला होगा और पुलिस की इंक्वायरी जो वो 90 डेज में क्लियर होगी। ये कोई छोटा अमेंडमेंट नहीं है, छोटी बात नहीं है, ये जो अमित शाह जी ने और बीजेपी ने लाई है। दूसरी बात, जो मॉब लिंचिंग, कि मॉब लिंचिंग में हमको हिंदुओं को उन्होंने ठहरवा दिया था कि मॉब लिंचिंग हिंदू लोग करते हैं, पर आपको मालूम होगा कि पिछले कितने सालों में हमारी हिंदू दलित महिलाओं के ऊपर कितने अत्याचार होते थे। और वो अत्याचार के कारण 2004 से 2000 साल में हिंदुओं की मॉब लिंचिंग में हमारी 1760 हिंदू महिलाएं मर गई हैं, शहीद हो गई है जी। माने उतना उनका, इन्होंने उनको सामने वालों ने, मुस्लिम कम्युनिटी ने उनका मॉब लिंचिंग किया है। उसके ऊपर सारे कानून, सारी चीजें दबाई गई थी। वो क्यों दबाई गई? अब मॉब लिंचिंग के बारे में देखना, अभी हिंदुओं ने मॉब लिंचिंग की, ये कोई बताएंगे नहीं। हमारी गायों को ट्रक ट्रक में भर के अलग अलग बॉर्डर से उनको कत्ल खाने में लेके जाते हैं, बेचते हैं, और बीफ ईटर को एक्सपोर्ट करवा देते हैं 2 नंबर से। ये सारे काम अब रुक जाएंगे, आप देखना। और ये मॉब लिंचिंग का इश्यू जो इन्होंने किया है वो बहुत जबरदस्त है। और दूसरी बात है, तीसरा कानून कि जेडीयू के देश के टुकड़े टुकड़े होंगे, ये इनके सामने भी कानून आ गया, ये नए बिल के जेएनयू अंदर। सर, जेएनयू, जेडीयू नहीं, जेएनयू।
जेएनयू, सॉरी, जेएनयू के नारे में देश के खिलाफ, धर्म के, जाति के खिलाफ अभी जो कोई भी नाराबाजी करेंगे उनको 5 साल की सजा मिलेगी। अभी हमारे ओवैसी साहब भी जो बकवास करते हैं हमेशा टीवी पे आपे, और उनके भाई कहते हैं कि हमको सत्ता दे दो, हम 5 साल में तो ये सारे लोगों को मिटा देंगे, ये सबकी हवा अभी निकल जाएगी। लेकिन ओवैसी साहब तो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिटी की बात करते हैं, लॉ की बात करते हैं, और ये बोलते हैं कि हमने तो सिलेक्ट कर लिया, हिंदुस्तान हमारा है और इसी मिट्टी में हमें रहना है। हमेशा यही बोलते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। हाँ, पर मिट्टी में रहना है, पर कांटे तो नहीं उगाना है। गुलाब के फूल उगाओ ना, कांटे क्यों उगा रहे हो? बोलते दोनों उगते हैं ना साथ में, गुलाब के साथ कांटे भी उगते हैं। नहीं, गुलाब के साथ कांटे, पर ये तो सिर्फ काली कांटों का जो झाड़ होता है ना, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं मैं भूल गया। लेकिन मुकेश सेक्टर, लेकिन वो उगाने का। लेकिन मुकेश गांधी साहब, कहा तो ये जाता है कि असल में ओवैसी साहब रिपोर्ट्स टू दैट मैन ऑन द स्क्रीन, मिस्टर ऑनरेबल मिस्टर अमित शाह। असल में ओवैसी साहब तो अमित शाह जी के आदमी हैं, और वहीं पर कैंडिडेट खड़ा करते हैं जहां पे कांग्रेस को हराना होता है। मुकेश गांधी साहब, नहीं, ये गलत बात है। ऐसा है कि हमेशा बीजेपी जब जीतती है ना, और तो सामने जो कमजोर पार्टी है उसको बी टीम लोग बना देते हैं जी। अभी हम गुजरात में हम एनसीपी को लड़ा रहे थे, तो कांग्रेस क्या बोलती थी कि हम तो एनसीपी बीजेपी की बी टीम है जी। वैसे ओबीसी बी टीम बनाने का ट्राई करते हैं, और वो एक बाजू से अपने आप को सेफ रखने के लिए लोगों के अंदर एक मैसेज देते हैं अपने कार्यकर्ताओं में जी। कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं तो अमित शाह के साथ जुड़ा हुआ हूं, मैं उनको मदद कर रहा हूं। वास्तव में ये बात गलत है। अमित शाह जी ऐसी दोधारी नीति नहीं करते हैं। कांग्रेस ने यहाँ शिवसेना very impressive. I'll be very frank with you. If he was really doing that, I'd be very impressed. अगर उन्होंने असल में ओवैसी साहब को प्रॉप करके रखा हुआ है, then I will be even more impressed with Mr. Amit Shah and what he is doing. But if you say he is not, then it's okay. चलते मुकेश गांधी साहब, ये बात। हाँ जी। छगन भुजबल साहब ने आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग, दिलचस्प स्टेटमेंट दी है, जबरदस्त। उन्होंने कहा है कि वो मनोज झरंगे पाटिल जो है ना, वहां पे 6-7 बंगले और भी बना दो, 2-3 मंत्रियों के बंगले, चीफ सेक्रेटरी का बंगला, लॉ सेक्रेटरी का बंगला, लॉ मिनिस्टर का बंगला, वही बना दो, क्योंकि हमेशा तो वही उन्हीं के आसपास रहते हैं। और आने वाले हर चीज में कानून के बारे में उनसे एडवाइस ले ले। ये विषय क्या है? मराठा रिजर्वेशन प्लस अदर रिजर्वेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर। ये क्या है सर? कोई भुजबल साहब से बात तो करे। अजीत दादा ने बात तो करी थी उनसे, लेकिन अभी भी उनका गुस्सा मुझे लग रहा ठंडा नहीं हुआ, क्योंकि झरंगे पाटिल साहब भी कुछ ना कुछ नोकझोंक करते रहते हैं उनके साथ। जी मुकेश गांधी साहब, कुछ कहना चाहेंगे इस पे? नहीं, क्या है, ये जो इन्होंने जो सैटायरिक अपनी लैंग्वेज में उनकी स्टाइल में जो बात की है वो सही की है कि जरांगे को ऐसे, उसको एक जो मिशन है उसका मराठा रिजर्वेशन का काम है, वो वहां तक उनको सीमित रहना चाहिए। वो भूल गया। अगर वो एडवाइजर बन जाएगा तो उसका पूरा आंदोलन जो है ना वो रिवर्स हो जाएगा। जिस तरह से गुजरात में पाटीदार आंदोलन, हरियाणा में जाट आंदोलन रिवर्स हो गया ना, वैसा ये आंदोलन रिवर्स हो जाएगा। लेकिन मुकेश गांधी साहब, पर्सनल क्वेश्चन टू यू, एक व्यक्तिगत सवाल आपसे, नॉट एज एन एनसीपी लीडर, नॉट एज एन एनसीपी लीडर, व्यक्तिगत सवाल है। ये झरंगे पाटिल साहब की ये जो रैलीज हो रही हैं टाइम टू टाइम, बिल्कुल क्लॉकवर्क की तरह, ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ, ये कौन करा रहा है? झरंगे पाटिल साहब इतने केपेबल हैं क्या कि अपने आप ये सब कर लें? इज दैट पॉसिबल? मुकेश गांधी साहब, इसके पीछे है कौन? आपका प्रश्न बहुत सही है, और जरांगे पाटिल यही मार खा रहा है, क्योंकि अगर जरांगे पाटिल अकेला काम करता था और आंदोलन चला के अपनी रैली करते, चलते हुए पदयात्रा करता था, तो वो अप्रिशिएट होता था। पर जो ये जंगी सभाओं का आयोजन, जो खर्चे जो होते हैं, एक सभा के पीछे 5-5, 10-10 करोड़ का खर्चा होता है पॉलिटिकल रैली में जी, और वो करने वाला उनके पीछे जबरदस्त, मुझे लगता है कि ये कांग्रेस की लॉबी है, और ये उनका पूरा फंडिंग करती है, और उनको शिंदे की गवर्नमेंट को गिराने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए, और बीजेपी को बदनाम करने के लिए ये इसको एक इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं। वो बहुत गलत बात है। ये मुझे लगता है की लॉबी है कि शरद पवार साहब की लॉबी? कांग्रेस में शरद पवार जी आ गए,
उद्धव ठाकरे वो सब जी एक ही सिक्के की दो बाजू है। हाँ, अभी उद्धव तो कांग्रेस ही हो गया ना, अभी उनकी शिवसेना नहीं, में उद्धव साहब पैसे नहीं खर्चते सर, उद्धव साहब पैसे नहीं खर्चते, आपको हाँ। मालूम है। वहाँ नहीं, सर वहाँ पे वहाँ पर आउटगोइंग बंद है सर, सिर्फ इनकमिंग है, ओनली इनकमिंग अरे ओनली। अरे नहीं, हाँ वो उनका पर्सनल इश्यू है। जब अपने निगहबान पर कोई हाथ डालता है ना, तो उसको बचाने के लिए आदमी अपना घर की सारी मिलकत भी लुटा देता है। वैसी उद्धव की भी हालत है। जो पहले एक्टिव नहीं थे, इतने अभी एक्टिव उद्धव जी हो गए हैं, और वो क्या करते हैं वो उनको पता। पर जो हो रहा है, मेरे को उद्धव जी के लिए बहुत प्यार है, मेरे पुराने दोस्त हैं वो। मैं भी शिवसेना में 10 साल था जी। पर जिस राह पे वो अभी चल रहे हैं, वो राह में सिर्फ उनके पीछे एक ही पिक्चर बन सकती है, गुमराह उद्धव ठाकरे। राइट, थैंक यू सो मच सर, मुकेश गांधी साहब, रियली हाँ जी। प्लेजर टॉकिंग टू यू। आई होप यू विल विजिट आवर ऑफिस हाँ। आल्सो वन ऑफ दीस डेज। आप जरूर हमारे ऑफिस भी आएंगे, स्टूडियो में भी आएंगे, और नहीं, मैं नहीं। उम्मीद करता हूँ यू विल शेयर अ कप ऑफ कॉफी और कप ऑफ चाय विद अस, दैट बी वंडरफुल। 100% और आज गीता जयंती के दिन पे हम श्री योगेश्वर कृष्ण को सत सत प्रणाम करेंगे और कहेंगे कि गीता के जो पॉजिटिव विचार है वो हमारे देश में नई युवा पीढ़ी में जाएं, और इनके लिए भी आप कोई प्रयत्न करो कि युवा पीढ़ी को हमारा धर्म क्या है जी, हमारी जीवन, हमारी संस्कृति परंपरा क्या है, इसके लिए भी आपकी चैनल से कोई प्रयत्न नए होने चाहिए। मैं आपको आऊंगा, आपके साथ कॉफी पीऊंगा और साथ में मैं लड्डू भी लेके आऊंगा। क्या बात है थैंक सर। यू। नमस्कार सर, नमस्कार, नमस्कार सर, हर हर महादेव, जय श्री राम। हर थैंक यू हर सर, महादेव, जय श्री राम। thank you sir. Right, at the moment with us, that was nice.